All right, the subject says Rundians firing Pakistanis by being racist. खुद ये Indians को he wrote as Rundians and calling them racist. Okay, सुनते हैं इनकी कहानी. सलामुकुम जुनेद भाई, दिस इज़ ABC. आई एम एक मतलब उनका प्रोफेशन है, मैं बता नहीं सकता. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम राइटिंग टू यू. ऑनेस्टली आई एम a bit nervous, but I've got a story I need to get off my chest. And I know your platform is the only one bold enough to call out the bullshit when it sees it. So here it goes. I've been in such and such industry for a while now, having worked with names you've probably heard, like, again, I'm not going to name those institutions and organizations, and a few others that may or may not be renowned depending on who you ask. But anyway, the point is, I have been around in the industry. Now, a few months back, just before things got hot between India and Pakistan politically, I got an offer to work for a subsidiary in Dubai, which was an offshoot of, अब पता नहीं मैंने इसका नाम लेना कि नहीं लेना, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं डाला. Honestly, I was skeptical at first, but surprised myself by liking it. The team was hardworking, chill, and the editorial policies were actually less rigid than the so-called big brands. Pay was phenomenal, and so was the work-life balance. I stayed thinking long term, चलो CV में एक और नाम डाल लेते हैं. Everything was fine until it wasn't. Fast forward 2 months, the India, और उन्होंने इंडिया को ENDI, ये जो इंडिया जिस तरह आसिफ गफूर साहब लिखते थे ट्वीट्स में, the India Pakistan tension escalated, and while I mentally prepared myself for potential heat or biased treatment, I stayed focused. Work to work hai, and let's be real, corporates rarely care about what's going on outside as long as the content is getting published. But then one afternoon, I get a sudden message from my assistant content manager: join this Google Meet ASAP. I opened the link and guess who's in the meeting? The HR. Now I've been in the industry long enough to know when the X is about to fall. My heartbeat shot up like FPS lag on a potato PC. A few seconds later, my friend, who also happens to be the only other Pakistani on this team, joins the call. HR doesn't waste time. We are restructuring the company. Sadly, we have to let you both go. No explanation, no warning, no accountability, and not a single Indian writer was let go in this so-called restructuring. At first, I swallowed the corporate jargon like a bitter pill, but then came the confirmation. HR later texted me, and I quote, "Yes, we are trying to get all the pending payments for all our Pakistani consultants cleared as soon as possible." Bus, that one line confirmed everything. So let's call it what it is. We weren't fired for performance. We were fired for being Pakistani. Junaid bhai, I get the politics are messy, but what's messier is when regular people like us, who are just trying to make an honest living, get caught in this ugly crossfire. There was no cause, no complaint, just quiet cold racism dressed in corporate lingo. I just want people to know, if you're Pakistani and working for a Rundian company or a company with Indian management or Indians in majority, especially remotely, don't wait for the humiliation. Don't give them a chance to pull the rug from under you. Walk out before they throw you out. अच्छा, it's so ironic कि इंडियंस के खिलाफ है और इंडियन म्यूजिक वहाँ चल रहा है. इंडियन म्यूजिक के बगैर शादियाँ नहीं होती. हेट पूरा है. Acha, walk out before they throw you out. Thanks for reading this rant. If you choose to feature this on your channel, just let people know this isn't just about me, it's about all the freelancers out there who get silenced quietly. Regards, jobless but not voiceless. So, जैसा कि आपने देखा, ये एक भाई हैं और इन्होंने किस तरह रेफर किया है इंडियंस को, which is not very polite. That's not how you label an entire company, entire country based on the actions of few, or even if it's a majority. That's not a way to. अब मैं यहाँ पे कोई इंडियंस के उठाने वाली बात नहीं है. This is just, देखो, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं. पॉलिसीज कौन बना रहा है, अफेक्ट कौन हो रहा है. सी, एंड दिस इज व्हाई आई ऑलवेज से कि वॉर्स आर बैड. अब वॉर हो कहाँ रही है, इम्पैक्ट कहाँ तक आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डोंट नो फॉर श्योर. अब आप जैसे कह रहे हो कि सिर्फ हम 2 पाकिस्तानी थे और सिर्फ हम दोनों को एक ही दिन में निकाल दिया विदाउट फायरिंग एनी अदर इंडियन, कुड बी अ केस ऑफ रेसिज्म. देयर इज नो डिनाइंग दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट. Not denying that. However, एक और चीज़ मैं mention करूँगा. अभी when I was in Dubai, I met a lot of my friends, Pakistani mostly, and they said categorically, and these people are very sound, very good in their career and everything. तो उनमें इस तरह की लवाजमात वाला सिलसिला उनका नहीं है. वेरी ओपन माइंडेड, सबके मिक्स ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं. कुछ तो ऐसे हैं जो पैदा ही वहाँ हुए हैं एंड हैड 90% इंडियन फ्रेंड्स. सो नॉट ऑल, बट अ लॉट ऑफ देम सेड
कि दिस टाइम अराउंड, एंड वी हैड प्रॉब्लम्स बिफोर, पुलवामा भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, मुंबई अटैक्स भी हुए, they've lived through all those scenarios. So this time around, a lot of them said कि the treatment was very bitter from my own Indian friends. A friend of mine got kicked out of a WhatsApp group for no reason because she was the only Pakistani, and there were a few instances even in some certain companies where my friends, if not them directly, somebody they knew very closely felt mistreatment, or they were being treated differently. So yes, अब वॉर के जो रिपल इफेक्ट है वो कहाँ तक जाता है और किस तरह जाता है, दैट इज़ वाई वॉर्स आर बैड. एनीथिंग हेटेड रिलेटेड इज़ बैड, उसका इम्पैक्ट दूर दूर तक जाता है. अब you could be a wonderful resource, but just because based on their sentiments you are not part of an organization which could have thrived a little more, considering कि अगर आप उसका part हो. However, at the same time, this is not how you refer to an entire country. This is not a way to treat. अब आप जिस organization और जिन organizations में आप काम करते रहे हो, it doesn't suit you. तो क्वाइट पॉसिबली व्हाट इफ वो रेसिज्म आपके अंदर भी दिखा हो. एक सेकेंड, मुझे एक और ईमेल आई थी अराउंड द सेम लाइन्स. उसमें ये था, क्योंकि इस तरह की अब बहुत ईमेल्स आई हैं, वॉर वाली हो गई हैं, अब वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स वाली हैं. एक और आई थी, उसमें आई थिंक आई एम गोना फीचर इट टुडे, या मेरी नज़रों से गुजरी थी. उसमें था कि वो मेरे कोवर्कर इंडियंस को सलाम का मैं जवाब भी नहीं देता. नाउ दिस इज़ नॉट अ नाइस थिंग टू डू. वट एवर योर फीलिंग्स आर फॉर योर कंट्री और फॉर वट एवर कंट्री, अगर एक आपको नाइसली ग्रीट कर रहा है, योर जॉब इज़ टू ग्रीट देम नाइसली. दीज थिंग्स कैन बी रिपोर्टेड टू HR, ठीक है, बिकॉज इफ़ यू डोंट शो टीम वर्क स्पिरिट, इट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी. और कंपनी को भाई प्रोडक्टिविटी चाहिए और यूनानिमस एफर्ट के साथ चाहिए. लेकिन अगर कंपनी देख रही है कि नीचे वाले एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक प्लेट में खाना नहीं खा रहे, सलाम तक के रवादार नहीं है, तो कंपनी तो थ्राइव करेगी नहीं. तो कंपनी को तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए. कंपनी क्या करेगी, या तो सलाम करने वाले को बोलेगी भाई तू जा अपना काम कर, या वालेकुम सलाम ना कहने वाले को बोलेगी भाई तू घर जा और तू वहाँ आराम से बैठ जा. तो डोंट ब्रिंग दिस. और वही वाली बात है, पॉलिटिक्स इधर ही छोड़ के जाया करो. पाकिस्तान छोड़ दिया, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मुल्क को दस्तबरदार कर दो या उसकी फीलिंग्स ना हो, कुछ भी ना हो, बट यू आर देयर फॉर अ शेयर्ड गोल. काम करने गए हो, काम करो, पैसे कमाओ, ठीक है, और मुल्क में रेमिटेंस भेजो वगैरह वगैरह. मगर ये हेटरेड लेके भी दुनिया भर में जाके एक दूसरे के साथ गालम गलोच करना, नॉट द राइट थिंग टू डू. और फिर वही वाली बात है, लड़ाई में तो हार जीत अलग चीज़ है, दूसरी चीज़ों में भी मुकाबला करो, तालीम में करो, सेहत में करो. दोनों मुल्कों का बुरा हाल है. दोनों मुल्कों में जो है एवरेज इनकम, कितनी बड़ी आबादी जो है गुर्बत की पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है, उसको कब एलिवेट करना है. जीत वहाँ होगी, जीत उस मैदान में होगी भाई, तो उस तरफ करो. तो बाकी मैं आपको भाई यही बोलूँगा कि अगर आपका इतना रेसिस्ट रवैया है, परहैप्स यू डोंट बिलोंग इन अ मल्टी कल्चरल कंट्री लाइक UAE. मैं एक और साहब से मिला, अच्छा अब वो भी जो है बड़ा एंटी हिंदू रेटोरिक था उनका, ठीक है. अच्छा, द गाय इज़ ऑस्ट्रेलियन बाय नेशनैलिटी, पाकिस्तानी गाय, और वो अब UAE में काम कर रहे हैं. तो वो उनसे एक जगह मुलाकात हुई, तो वो बस एंटी हिंदू रेटरिक, उनका व्हाट्सएप अंकल वाली वो बातें कर रहे थे. और किए जाएं कि अगर मेरे सामने 10 हिंदू आ जाएं तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा. मैंने कहा देखिए यार, योर प्रॉब्लम इज़ नॉट विद हिंदू, योर प्रॉब्लम इज़ विद हेट्रेड. मसला हेट्रेड से, हिंदू से नहीं. हिंदू तो पाकिस्तान में भी कितने हैं, और अगर 10 को मार दोगे तो फिर अगले 10 आएंगे, और ये लड़ाई कब तक चलेगी. जीत लड़ाई में नहीं है, जीत लड़ाई अवॉइड करने में है, डायलॉग में है, कोर्जन में है, रिलेशनशिप्स में है. और दूसरा मेरा भाई जिंदा रहोगे तो ज़्यादा लोगों के लिए कह रहे मैं पाकिस्तान के लिए जान दे दूंगा. मेरा ठीक है, जान देना आसान है, ट्रेन के आगे खड़े हो जाओ, जान चली गई. जिंदा रहना मुश्किल है. पाकिस्तान के लिए जिंदा रहें, और फिर अपनी नॉलेज और नॉलेज बेस से और एक्सपर्टीज से लोगों को इनेबल करें. अब तक जो आपने सीखा है वो तालीम बांटें लोगों को. अपनी जब प्लेट भर जाती है तो अब आपकी जिम्मेदारी होती है दूसरे की प्लेट को आप इनेबल करें, दूसरे को. पहले ये काम मुश्किल है. तो उनका ये सारा रेटरिक चले जाए. अब मैंने उनको बोला मेरे भाई, आप जिन सोसाइटीज़ में थ्राइव किए हो ना, ऑस्ट्रेलिया में, UAE में, वो मल्टी कल्चरलिज्म की वजह से थ्राइव किए हो. अगर वो लड़ाई झगड़े में हिंदू मुसलमान में लगे रहते ना, तो वो भी हमारे जैसे ही होते, और फिर आप यहाँ ना होते. आप
वहीं होते कराची में, गुलशन इकबाल में या जौहर में, जहाँ भी, समझ रहे हैं। तो अगर आपने इन मुल्कों में थ्राइव किया है तो को एग्जिस्टेंस की वजह से किया है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वजह से किया है, डाइवर्सिटी की वजह से किया है, और अपने अपने काम की एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पे। आपको इस पर नहीं जज किया गया कि आप मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, या आप हिंदू हैं, जय श्री राम बोलते हैं। आपको काम आता है, आपका मज़हब कुछ भी हो, ये लो काम करो, मेहनत करो, ये लो जी ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट, जाएं घूमे फिरे दुनिया में, ये वजह है। तो 1 हिंदू 10 हिंदू, मैं सर फाड़ दूंगा, मैं मोहम्मद अली बन जाऊंगा, बॉक्सिंग करूंगा, ये क्या बात है यार। आप दूसरे मुल्क में रहते हो, इतना तो एक्सपोजर है अब आपका, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स। तो जो है ज़िंदगी बांटें, और अपनी एक्सपर्टीज़ है वो तालीम बांटें, ठीक है, उसमें ज़्यादा आप अमर हो सकते हैं, और वो ज़्यादा नोबल काम है, राइट। स्कूल बनाएं, लाइब्रेरीज बनाएं, काम करें, वगैरह वगैरह। सो या ये इस किस्म का रेसिज्म जो है ना, ये थ्राइव नहीं कर सकते आप फिर इस तरह के मल्टी कल्चरल माहौल में, क्योंकि आप कितनों, अच्छा आप इसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल लिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ यूएई में, आपको मिलेंगे इंडियंस। कहाँ अवॉइड करोगे? लार्जेस्ट पॉपुलेशन है भाई। अमेरिका जाओगे वहाँ भी है। अरे वो रील्स आती है मैक्सिको की, वो सिख जो है वो स्पेनिश बोल रहे होते हैं, गैसोलीना गा रहे होते हैं, बामा सीता वट जो भी है, समझ रहे हैं, मामी कूलो ग्रांडे, ये सब बोल रहे होते हैं। तो भाई कहाँ बचोगे, कहाँ जाओगे? फिर पाकिस्तान ही आ जाओ, यहाँ नहीं है इंडियंस, यहाँ पे तुम दबा के जॉब करो बेहतरीन, कोई तुम्हें इंडियन रेसिज्म यहाँ नहीं मिलेगा, वरना दुनिया में कहीं भी जाओगे वो तो है, ठीक है। बाकी मेरा ये मानना है भाई, अपने काम में ऐसे बन जाओ कि अगला चाहते हुए भी आपको ना निकाल पाए। आपकी एक्सपर्टीज़ का लेवल इतना ज़्यादा हो कि आप अगलों की मजबूरी बन जाओ कि हाँ ठीक है, आई डोंट बिलीव इन व्हाट ही बिलीव्स, बट यार काम सही है, इसका काम बैठ जाएगा अगर ये हटेगा तो। अपने आप को वो क्या अनब्रेकेबल बना दो, मतलब आप ब्रेकअप आपसे कोई कर ही ना पाए, समझ रहे हैं आप। सो टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बाकी आई एम नॉट इनवैलिडेटिंग योर एक्सपीरियंस, रेसिज्म एग्जिस्ट, और कूट कूट के एग्जिस्ट करती है, और पूरे मिडल ईस्ट में एग्जिस्ट करती है, खा वो अरब हो, खा वो पाकिस्तानी हो, फिलिपिनोस के साथ हो, इंडियंस के साथ हो, या करने वाला कोई भी हो, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, और ये तो फेस करनी है। अब क्या करें भाई। सो इसलिए जो वॉर आप करते रहते हो, उससे फिर ये नुकसान होते हैं। लाइक आई सेड, 9/11 से मेरी ट्यूशन की नौकरी चली गई थी। अबे मैं गार्डन वेस्ट में बैठा, ठीक है, लियारी नदी के पास मेरे मामू का घर था, मगर नदी के पास तो नहीं था, मतलब वहीं से रोड जाता है। मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, उधर ट्विन टावर गिर रहे हैं, मुझे क्या पता उन ट्विन टावर के साथ मेरी नौकरी भी गिर रही है। और ये 2001 की बात है। मामू मेरे ट्रैवल एजेंट थे, मामू की ट्रैवल एजेंसी बंद हो गई, फ्लाई कंफर्ट ही खत्म हो गया ज़िंदगी से। यहाँ पे प्लेन्स आना बंद हो गए। पूछिएगा अपने अब्बू से, जो लोग 20s में या अर्ली 30s में, पूछिएगा व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान आफ्टर 9/11। डूड, एवरी फ्लाइट स्टॉप्ड कमिंग हियर फॉर मेनी वीक्स। यहाँ पे आप किसी से पूछें, इट यूज्ड टू बी अ हब। ये मेट्रोपोल के पास KLM का ऑफिस था, KLM जो रॉयल डच एयरलाइन है, ठीक है। जापान एयरलाइन का ऑफिस था, ठीक है, यहाँ पे प्रेस क्लब के पास, ठीक है, थाई कैथे पैसिफिक आती थी यहाँ, सिंगापुर एयरलाइन आती थी, इन सब के यहाँ ऑफिसेज एग्जिस्ट करते थे भाई, सब चले गए थे। 9/11 का बोला भाई काम ही नहीं करना, और फिर वही हुआ, 20 साल बाद उसामा इधर ही से मिला। खैर, सो दुनिया इतनी ग्लोबलाइज है। तो जब 2001 में मैं बैठा ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, फ्रैक्शंस पढ़ा रहा था अपने कज़न को, मुझे क्या पता मेरी नौकरी फ्रैक्शन हो जाएगी, और हो गई। तो इसलिए जो आप वॉर करते हो ना, भले आप अमेरिका में बैठे हो, भले आप एस्टोनिया में बैठे हो, कहीं ना कहीं से रिपरकशंस आप तक आएंगे, बिकॉज वी आर ग्लोबली कनेक्टेड। पूरी दुनिया इस वक्त कनेक्टेड है भाई। बेबल फिल्म देखें, सैड टू हियर अबाउट योर फायरिंग, लेकिन आप अपना ये तरीकाकार बदलें। इस तरह पूरे मुल्क को इस तरह गाली दे के बोलना, या इंडिया को मैं ई से लिखूंगा तो उससे इंडिया फिनिश हो जाएगा, इस बच्चों वाले रेटरिक से बाहर आएँ, और ज़रा काम की बुनियाद पे मुकाबलेबाजी करें। और ये गालियाँ वालियाँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। फिर आगे से वो भी हमें पाकिस्तानी बोलते हैं, अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। तो जो जहालत कर रहा है उसका अगर आप जवाब भी जहालत से देंगे तो आप में उसमें फ़र्क क्या रहा? फ़र्क पैदा करें, ज़रा ग्रेस लाएं अपने अंदर, ठीक है। चलें, ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।